हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके मैथ के टॉपिक सर्कल चला हुआ था, जिसमें हमारे पास कुछ थ्योरम और कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके थे। अभी हम उसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हुए चलते हैं। आपके पास आज जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज ए रोम्बस। आपके पास एक पैरेललोग्राम है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, वो एक रोम्बस है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम इन विच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड रोम्बस all four sides are equal and opposite sides are parallel. That is the difference. We have to prove that it is rhombus. We have to prove that all four sides are equal. Pair opposite sides are equal according to the parallelogram, but not all four sides are equal in parallelogram. According, we have to prove that it is rhombus. We have to prove that all four sides are equal. First of all, ABCD is a parallelogram in which circle is circumscribed, which touch the point A, P, Q, R, S at point A, B, B, C, C, D and A, D respectively. We have to prove that ABCD is a rhombus. We have to prove that ABCD is a rhombus. Since the tangent from the same exterior point of a circle are equal, we know that the tangent from the same exterior point to a circle are equal in length. So A is an exterior point and AP and AS are two tangent from the same exterior point. So length of AP equal to AS. So AP equal to AS. Similarly, B is an exterior point and BP and BQ are two tangent. Then BP equal to BQ. BP किसके इक्वल बनेगा? BQ के. Similarly, C is an exterior point, CR and CQ are two tangents. So CR equal to CQ and D is an exterior point. D is an exterior point. So DR equal में DS. DR equal में DS. We have to add all the four sides, all the four equation parallelly. Parallelly mean we will add left side to left side, right side to right side. It's mean AP plus BP plus CR equal में plus में DR equal में AS plus DS BQ plus में CQ. According to diagram, AP plus में BP, it's mean AB. AP प्लस में बीपी AB. CR प्लस में DR, CR प्लस में DR इक्वल में CD, इक्वल में CD. AS प्लस में DS, आपके पास क्या बनेगा? AD कंप्लीट. BQ प्लस में CQ क्या बनेगा? BC. दैट इज द इक्वेशन. Since ABCD is a parallelogram, then AB parallel to CD, AB parallel to CD and length AB equal to CD. AB किसके पैरेलल है? CD का. AB किसके इक्वल है? CD के. BC parallel to AD, BC parallel to AD and length of BC equal to AD. Equation 6 show that CD equal to BC. We will change here AB equal to AB. AB प्लस में AB इक्वल में AD इक्वल टू BC, BC प्लस में BC. टू टाइम ऑफ AB इक्वल में टू टाइम ऑफ BC. टू से टू कैंसिल होगा, क्या बनेगा? AB इक्वल टू BC. फ्रॉम इक्वेशन 6 AB इक्वल टू CD. फ्रॉम इक्वेशन 8 AB इक्वल टू BC. सो AB इक्वल टू BC, BC equal to AD, but BC is also equal to AD. So all four sides are equal. AB equal में BC equal में CD equal में AD and opposite sides are parallel. So it is a rhombus. We have to prove that. Next question आपके पास, a triangle ABC is drawn, circumscribe a circle of radius
4 सेंटीमीटर। आपके पास एक ट्राइंगल ड्रा की गई है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, उसका रेडियस कितना है 4 सेंट, सच दैट दिस सेगमेंट बी डी एंड सी डी विच डिवाइड बी सी बाई द पॉइंट डी। जो आपके पास बी डी सी डी उसमें 2 पॉइंट है, 2 सेगमेंट है जो आपके पास बी सी को डी से डिवाइड करने पर मिलते हैं, जिनकी लेंथ आपका 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर गिवन है। वी हैव टू फाइंड द ए बी एंड बी सी। सीधी फिगर हमारे पास गिवन है। तो फिर आपके पास क्वेश्चन में अगर हम चलें तो आपके पास हमें ए सी और ए बी की लेंथ निकालनी है। सबसे पहले गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल 4 सेंटीमीटर गिवन है, बी डी 8 है और सी डी कितना है 6 है, कितना है 6 सेंटीमीटर है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें ये पता है कि सर्कल के किसी एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट होती है, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो पॉइंट बी एक एक्सटीरियर पॉइंट से यहाँ से एक टेंजेंट तो बी एफ है, दूसरी बी डी है, तो आपके पास बी डी किसके इक्वल बनेगा, बी एफ के। तो आपके पास बी डी किसके इक्वल बनेगा, बी एफ के। दोनों किसके इक्वल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि पॉइंट बी से 2 एक्सटीरियर पॉइंट है। एज इट इज सी डी किसके इक्वल बनेगा, सी ई के। सी डी किसके इक्वल बनेगा, सी ई के। किसके इक्वल बनेगा, सी ई के। ये 6 सेंटीमीटर, ये भी कितना बनेगा 6 सेंटीमीटर बनेगा। एज इट इज आपके पास ए एफ किसके इक्वल बनेगा, ए ई के, क्योंकि सर्कल के एक एक्सट्री पॉइंट ए से 2 टेंजेंट रहा है, ए ई इक्वल में ए एफ बनेगा। अगर हम ये इसको एक्स मान ले तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स। लेट ए ई इक्वल टू एक्स, देन ए ई इक्वल टू ए एफ इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड क्या बनेगी, डायग्राम को देखिए तो ए बी क्या बनेगा, ए एफ प्लस में बी एफ, ए एफ प्लस में बी एफ, एक्स प्लस में 8 सेंटीमीटर बनेगा। ए सी कितना बनेगा आपके पास, ए सी आपके पास डायग्राम को देखें, ये 6 था, ये 6 हो गया, ये 8 था, ये 8 हो गया, ये एक्स था, ये भी एक्स हो गया। ए बी आपके पास 8 प्लस में एक्स, एक्स सेंटीमीटर है। बी सी आपके पास कितना बनेगा, 8 प्लस में 6, 14 सेंटीमीटर बनेगा बी सी। एज इट इज ए सी आपके पास एक्स प्लस में 6 सेंटीमीटर बनेगा। अब हमारे पास जो चीज़ निकालनी है वो आपका साइड है, और साइड का एक पार्ट मिस है। साइड हमारे पास ट्राइंगल में कहाँ यूज होगी, एरिया निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए, यानी कि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। अब हमें ये नहीं पता कि ट्राइंगल में आपके पास ये राइट एंगल है, इक्विलेटरल है, स्केलन है, तो फिर आपके पास हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अब हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास ट्राइंगल की तीनों, सबसे पहले हमें एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी अपॉन में 2, हाफ ऑफ सम ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। ए बी एक्स प्लस 8 है, बी सी एक्स प्लस 6 है, सी डी 14 अपॉन 2, एक्स प्लस एक्स 2x, 8 प्लस 6 प्लस 14 28 अपॉन 2। नोमिनेटर में दोनों से क्या कॉमन आएगा 2, एक्स प्लस में 14 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपके पास कितना बचेगा एक्स, एस एक्स प्लस में 14। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है, रूट एस इंटू एस माइनस में ए बी, ए एस इंटू एस माइनस में ए सी, बी इंटू एस माइनस में बी सी, सी। अब आपके पास सब की वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन में। एस कितना था एक्स प्लस में 14, और आपके पास एक्स प्लस 14 माइनस में एक्स माइनस 8, माइनस का एक्स माइनस का 8 बनेगा, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस का 6 बनेगा, इंटू में एक्स प्लस 14 माइनस का 14, ये एक्स प्लस का ये माइनस का, ये पोर्शन आपका एज इट इज आ जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये 14 प्लस का 8 माइनस का क्या बचेगा 6 बचेगा, ये एक्स प्लस का ये एक्स माइनस का कैंसिल, ये 14 प्लस का 6 माइनस का कितना बचेगा 8, ये 14 प्लस का ये 14 माइनस का क्या बचेगा एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ गया। अब हम इस कंप्लीट ट्राइंगल में एक चीज़ नोट करते हैं कि अगर हमारे पास इन वर्टेक्सों को सेंटर से मीट कराएंगे तो आपके पास एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल और 3 ट्राइंगल बनेगी, जिसमें ओ डी, ओ एफ और ओ ई एल्टीट्यूड बनेंगे, और बेस हमारे पास बी सी, ए बी और ए सी बनेंगे। इसमें एल्टीट्यूड रेडियस है वो कितना है 4 सेंटीमीटर गिवन है। साइड हमारे पास ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ऑलरेडी हम वो पहले निकाल चुके हैं। अगर हम इस कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालने के लिए इन तीनों ट्राइंगलों का एरिया अगर ऐड करेंगे तो ट्राइंगल किसका आएगा, ए बी सी का एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी।
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। अब जिस ट्राइंगल में हमारे पास बेस और एल्टीट्यूड हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू में एल्टीट्यूड 1/2 ए बी इंटू में ओ एफ, ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। बी ओ सी में चलेंगे तो आपके पास 1/2 बी सी इंटू में ओ डी। ए बी सी में चलेंगे 1/2 ए सी इंटू में ओ डी। अब आपके पास 1/2 एज इट इज है, ए बी कितना है, ए से लेकर बी तक ये आपके पास एक्स प्लस का 8 है, कितना एक्स प्लस का 8 है। ओ एफ रेडियस है सर्कल की, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, प्लस में 1/2 बी सी कितना आपके पास, बी सी आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक का कितना था, ये 8 था ये 6 था, दोनों को ऐड किया तो कितना आया था 14 इंटू में ओ डी। ओ डी तो रेडियस ऑफ सर्कल है, कितनी है 4 सेंटीमीटर है, प्लस में 1/2 ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास है ए सी इंटू में ओ डी उस ओ ई। तो 1/2 ए सी इंटू ओ ई, ए सी आपका एक्स प्लस 6 ये 4 है, 1/2 इंटू 4 तीनों से कॉमन आ जाएगा, ये 1/2 इंटू 4, ये 1/2 इंटू 4, ये 1/2 इंटू 4 तीनों से कॉमन आ जाएगा। यहाँ एक्स प्लस 8 बचेगा, यहाँ 14 बचेगा, यहाँ एक्स प्लस 6 बचेगा। तो 2 से 4 कैंसिल करेंगे 2 बचेगा, ये एक्स प्लस में एक्स 2x, ये 4 प्लस में 14 प्लस में 6 28 बनेगा। 2 अंदर से दोनों से कॉमन आएगा, 2 इंटू में एक्स प्लस का 14, आपके पास 4 इंटू में एक्स प्लस का 14। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ गया, ये भी आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है। एक ही ट्राइंगल के दो एरिया हैं तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमने दोनों को इक्वल पुट किया, रूट एक्स प्लस 14 इंटू 6 इंटू 8 इंटू में एक्स इक्वल है 4 इंटू में एक्स प्लस का 14। अगर ये रूट कैंसिल हो जाए तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जिसको पुट करके हम साइड्स निकाल लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। इधर से रूट कैंसिल होगा, एक्स प्लस का 14 6 8 एक्स बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, एक्स प्लस 14 का होल का स्क्वायर, ये एक्स प्लस 14 एक्स प्लस 14 का होल का स्क्वायर है, इससे इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 8 से 16 को कैंसिल करेंगे 2, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3, यहाँ 3 बच गया और एक्स बच गया, कितना बच गया 3x, कितना बच गया 3x। तो आपके पास इधर राइट साइड में ये एक्स प्लस 14 का स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या बच गया एक्स प्लस का 14, एक्स राइट लेफ्ट में जाएगा 3x माइनस का x, कितना बचेगा 3x माइनस का x, 3x माइनस x कितना बचेगा 2x, राइट लेफ्ट में कितना, राइट में कितना है 14, 2 से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7। अब आपके पास जो चीज़ हमें निकालनी है ए बी निकालनी है, ए बी हमारे पास यहाँ से किसके इक्वल थी x प्लस 8 के, किसके इक्वल थी x प्लस 8 के, x कितना आया हमारे पास, x की वैल्यू हम 7 निकाल चुके, 7 प्लस में 8 15 बनेगा। ए सी हमारे पास यहाँ से x प्लस 6 था, कितना था x प्लस का 6, यानी कि 7 प्लस में 6 कितना बनेगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर।